Okay, at first, very good morning. Okay, good morning. Because we are the first class of the third semester, right? Anyway, so before going to this class, I will make some rule and regulations that there is no rule and regulation in my class. That is first rule and regulation. But of course, I will appeal that and I will request that all of you at first you have to understand what we are talking over here. Okay, जो भी हमको करना है इस क्लास का अंदर में ही करना है, क्लास का अंदर में ही समझना है. ओके, दिस इज माय मेन मोटो एंड दिस इज माय मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. आपको जो भी समझना है इस क्लास के अंदर, क्लास का बाहर जाके समझने का कोशिश ही मत करना. क्लास का बाहर जाके रेफरेंस चाहिए था, आई विल गिव यू, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी आपको समझना है क्लास का अंदर हम समझेंगे. डोंट वरी अबाउट कोर्स खत्म कितना पढ़े कितना नहीं पढ़ पाएंगे. हो सकता है एक ही स्लाइड में क्लास खत्म करूं, पर हमको उस स्लाइड को ही समझना है अच्छे से. आप हाँ नहीं करना जब तक समझ में नहीं आए. जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हाँ नहीं करना है. दिस इज द मेन रूल. आप 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, कितने बार पूछो, इट्स ओके फॉर मी. आई विल मेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट द कोर्स. ओके, बट प्लीज प्लीज एंड प्लीज हाँ मत करना जब तक समझ में नहीं आ रहा है. गॉट इट? ये एक रिक्वेस्ट है. बाकी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम श्योर दैट एट द एंड ऑफ दिस, नॉट एंड, इन बिटवीन, अगर आपको ये सिलेबस पसंद नहीं, कोर्स पसंद नहीं है, तो बहुत कम बच्चे जो बोलेंगे ये सिलेबस पसंद नहीं, अदरवाइज आई विल मेक इट योर फेवरेट सब्जेक्ट. ये मेरा गारंटी है. ओके, आप मुझसे इतना दो, चक द इंडिया आपने देखा होगा ना, अदरवाइज आपने सुभाष चंद्र बोस का भी सुना होगा, आप मुझे खून दो मैं आपको, I will give you independence, like that. You just pay attention to me. In the reward of this, what I will give? I will make this subject your favorite. Why? Because what topic or subject we are going to talk, we are going to study, it is a very, very, very essential topic throughout your lifetime. Throughout your lifetime, because you are going to study such a beautiful topic, this is necessary for all living organisms. ओके, अभी डॉक्टर का पास हम जा रहे हैं, डॉक्टर कुछ लिख के दे देता है, मेडिसिन लेके आ जाते हैं. एक बार कोर्स खत्म होना, डॉक्टर मेडिसिन लिख के देखा ना, आप जरूर पढ़ोगे उसको, जरूर पढ़ोगे क्या लिखा है और इज इट रिलेवेंट. ये कभी कभी डॉक्टर अपना, कुछ डॉक्टर होते हैं ना एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करते हैं. तो नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू विल बी ए डॉक्टर, बट यू कैन अंडरस्टैंड द डिसीज, you can understand the medicine as well, and you can understand the situation of the disease, and you can also presume that this person is going this kind of fun or this kind of activity, she or he might be going to fall this kind of disease in future. Prediction of the disease, you definitely know what is the prediction of disease, you definitely know what is the health hygiene prediction of disease, some kind of disease, what is the medication of that disease. Of course you are not a prescribed doctor, but you can understand the thing. Okay, जैसे we are not the software engineers, but of course we can understand some application on your mobile, right, like that. But how much helpful that one, if you know some applications in your mobiles, how that is helpful to you to understand the theme, to understand the topic, like that things. Okay, first one. So first, what is you just pay, give me attention, it is my request. Okay, second, this will be your favorite subject. It is your demand, it is not a request, it is your demand. I will make it sure. Okay, so knowledge होना इंपॉर्टेंस नहीं है, कैसे यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंस है. Okay, just make some kind of things. Sometimes what happen, one famous scientist, this is just a story, not a correlate to, that is not just a fiction story, I've just prepared this kind of things. A famous scientist, suppose, just say anyone, any name of famous scientist, anyone? Okay, Newton.
Great. Newton. Isaac Newton, right? Who has discovered? Right. Gravitational force. Okay. He is used to travel in a plane, yeah, flight. Okay. I said that a people is sitting apart from that. Let's say in your class someone. उनका साइड में कोई बैठा था. Suppose a Indian, because Indians are intelligent by birth. तो क्या हुआ थोड़ा देर में अल्बर्ट आइंस्टाइन, सॉरी अल्बर्ट आइन नॉट अल्बर्ट, सर आइजैक न्यूटन, राइट. वो बैठ बैठे बोर हो गए, साइंटिस्ट लोग तो है, वो बोर होके बोले चलो क्यों ना गेम खेला जाए, साइड में देखे बैठा है. आर यू इंडियन? यस. प्लीज दिस इज ए स्टोरी, डोंट. ओके. सो आर यू इंडियन? यस. चलो हम गेम खेलते हैं. व्हाट इज द गेम? गेम इज दैट यू विल आस्क मी क्वेश्चन एंड आई हैव टू आंसर इट, एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर. वही सोच सकते हैं साइंटिस्ट लोग, टीचर, और क्या खेलेंगे गेम. चलो मैं पूछता हूँ, तुम पूछो. इंडियन बोले ऐसा थोड़ी चलता है. आप पूछो मैं पूछे, टाइम खराब मुझे क्यों करना है, स्पेशली गुजरात का हूँ, टाइम खराब नहीं करना है हमें. तो क्या करें ना, पैसा होना चाहिए. अगर आप पूछोगे मैंने आंसर कर पाया, आई विल गिव यू सम मनी, या मैं पूछूंगा ना आप यू विल गिव सम मनी. तो डिसाइड कैसे करें. साइंटिस्ट उनको थोड़ा ये था एटीट्यूड, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. चलो कोई बात नहीं, आई एम ए साइंटिस्ट. इफ आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू कैन नॉट आंसर दैट वन, you will give me 50 rupees. How much? 50. But if you will ask me question, because I am a great scientist, if you ask me question, if I will not answer that one, I will give you 5,000. Got it? Deal is okay. What was the deal? Deal was that if the so-called illiteracy man, yeah, so-called not a scientific man, if he cannot get the answer, he will pay only 50 rupees. Against that, if the scientist cannot answer, he will give 5,000 rupees. Done? Okay. So now Indian men told that to the scientist, sir, you are the great scientist, then the question, the first option is option to you, because you may know the many questions, answer of many questions. Anyway, you can ask me. So he has asked, what is the distance between Earth and Moon? Indian men just pick out 50 rupees, gave him, I don't know. Okay. Second question, 5 question. Okay. Second question from the scientist again. What is relative force? Like that. Same the Indian man, I don't know. Again 50 rupees. Third question was something like that. What is the mass of Earth? I don't know. Fourth question was like that. Who discovered the vertical gravitational force? Of course, because he was discovered, he will ask definitely same question. I don't know another. Then 50th question was that, what is the origin of Earth? I don't know. So how much he given? How much the Indian man given to the scientist? 250. Now deal, one person is over, half match is over, another half is there. Okay, we will discuss later on that. No, I will finish now. Then Indian man ask a question. Just tell me that organism who is climbing to the mountain with 3 legs, but come up with the mountain with 2 legs. समझ गए? नहीं, क्वेश्चन बोलो. 3 ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो 3 पैर में पहाड़ चढ़ता है पर आने का टाइम 2 पैर में आता है. बताओ. अल्बर्ट मतलब आई शॉक्ड. जस्ट ओपन हर लैपटॉप, हिज लैपटॉप, सर्च किए इधर इधर, बहुत सारा सर्च किए आधा घंटा तक, आंसर मिला ही नहीं उनको कहीं से भी. फिर 5,000 दे दिए इंडियन पीपल को. बोला आई डोंट. 5,000 दे दिए, पर उनको गिल्टी फील हो रहा था. ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन मेरे से 5,000 ले लिए. थोड़ा टाइम वो शांत से बैठे इंडियन, इधर देखना शुरू किया. ये बोल रहे आंसर वो देंगे. थोड़ा टाइम देखे देखे देखे, थोड़ा टाइम के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे इलेक्ट्रिक इंसान, मतलब आइजैक न्यूटन. नाउ क्वेश्चन इज दैट आंसर तो दो,
क्वेश्चन क्या था इंडियन में पूछे? क्वेश्चन ये बोले कौन सा जानवर है जो 3 पैर में पहाड़ चढ़ता है बट 2 पैर में नीचे आता है? इंडियन, जस्ट टेक 50 rupees, give him, I don't know, right? Like that. This is the implication of knowledge. आपका पास कितना नॉलेज है दैट डज नॉट मैटर एनीथिंग, आप इसको हाउ इट इज यूटिलाइजिंग, तो सीखो चीज बिकॉज यू आर इन मास्टर। ओके, कितना नॉलेज है कोई मतलब नहीं है इनका पास, देखो फिर भी वो इसको डिफीट करके आ गए, सिंपल लॉजिक था, राइट? एनीवे, सो नॉलेज इज इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस पता नहीं, दैट्स व्हाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, ए ग्रेट फिलोसोफर साइंटिस्ट, he has proved that imagination is greater than knowledge. Okay, आप इमेजिन कितना कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। एनीवे, बाय द वे, सो नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। गुड। सो एट फर्स्ट, वेलकम टू क्लास। हियर आई विल कोट ए famous quotation of Swami Vivekananda. All power is within you and you can do anything and everything. All power is within you. Can you believe that? Okay, just let me explain this one. You just take a grain seed, मूंगफली का सीड लो या कोई भी सीड लो, मिट्टी में डालो, you can take up this other thing, such kind of same sand या rock डालो, दोनों का पानी दो, किसमें जर्मिनेशन होगा? बोलिए। जर्मिनेशन होने का पावर उसमें था इसलिए जर्मिनेशन हुआ, उसमें नहीं इसलिए नहीं होगा। अगर आपको कुछ नॉलेज हो रहा है आपके अंदर में था, दैट्स ऑल। इसको मैं कितना पढ़ाऊं ये बोलेगे कुछ, ये बिलीव करो। ऑल पावर इज विथ इन यू। इफ ऑल पावर इज विथ इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज योर विलिंगनेस। आपको चाहना हो काम को करने के लिए, अगर आपको विलिंगनेस है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्लियर? ओके, खुद का ऊपर भरोसा करो, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। देखो मेरा एक हाइपोथेसिस है, रेस्पेक्ट टू ऑल, ऑल, बिकॉज भगवान ऐसे कोई चीज बनाए नहीं जो यूजलेस है। रेस्पेक्ट टू ऑल, किसी को डरो नहीं, सभी को रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट मतलब पता चला डर के नहीं, रेस्पेक्ट से रेस्पेक्ट करो। ये आपका फ्रेंड, आपसे वो कुछ ज्यादा जानता है, आप उससे भी ज्यादा जानते हो, मैं कुछ आपसे, मेरे से आप कुछ ज्यादा जानते हो। हाँ, वन थिंग, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, कुछ सीखने भी आया हूँ, समझ रहे हो? ओनली टू वे, इट शुड बी टू वे। आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? जिस दिन मैं आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, उस दिन लगा मैं कुछ सीखा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इट शुड बी टू वे। मैं तो आपको कुछ सिखाऊंगा, मैं तो आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम I will love to learn something from you as well. कैसे मैं सीख पाऊंगा? आप ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन करोगे जो मुझे पता नहीं होगा, तो मैं कहीं पढ़ूंगा तो मैं सीखूंगा भी। क्लियर? तो क्वेश्चन करने हेजिटेट मत करना कभी भी, ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ नहीं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स इट इज रिलेवेंट टू टॉपिक। ओके, एनीवे, सो बिफोर गोइंग टू दिस, what is that? Live in present. Who were present in online? Am I audible? And my screen is visible as well? Yes, sir. Yes, sir. Nancy, please Yes, start, sir. beta. Avani, Yes, sir. Haruvi, my screen is visible? Yeah. Yeah, very good. Very good, Kalani. Good. So, live in present. What does it mean? वर्तमान में जियो। चलो, who am I?
I am a man. Okay, or of course now I am your teacher, but I am a teacher, that is relative terminology. मैं यहीं पे टीचर हूँ आप लोग का सामने, घर में कुछ अलग हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ अलग हूँ, सब जगह में अलग, तो हम सभी को अलग अलग रोल प्ले करना है. बाय द वे आई विल टेक इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोड्यूस मी एंड यू नेक्स्ट क्लास. ओके, बट फर्स्ट यू विल कंफर्ट. पहले मैं आपको पूछना, आप बता, इससे मतलब मैं कुछ बताऊं आप समझो, आप कुछ, फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन तो बहुत पूरा पढ़ा है. What I am, that is doesn't important. What you are important, but the name is not important. My name is Ashok. आपको पता है, पूरा सभी को पता नहीं है, तो ओ होगा तब आप कुछ करोगे. हाँ, शी इज आरती. देखो आप क्यों इसका नाम याद है, उसका पीछे स्टोरी है. सॉरी, इसका नाम मुझे याद इसलिए रहेगी कि मुझे आगे पूछ रहा था अशोक सर कौन है, इसलिए मुझे याद हो गया. और नाम इसलिए याद हो गया कि anyway, so live in present. So what is situation? Present situation is very good. कौन बोला कोरोना? At present carrying condition due to corona, right? Carrying situation है या नहीं? Now we know about this COVID-19. This is a virus. It can spread some one person another person. It is taking a respiratory disease. Okay, there is symptoms of fever, cough, chill, okay, muscle pain, headache, like this. We all are either experienced, okay, or supposed to be experienced, or शायद मतलब ऑर्डर से पहले कहीं ना कहीं हुआ है, हमने देखा है. Anyway, we know about the situation better, whether we have been suffered the corona or our family members या relatives या गांव में या शहर में या देश में कहीं पे कुछ ना कुछ हुआ है, हमने एक्सपीरियंस हुआ है इसके बारे में. Now how it is spreading, you know about also that. Okay, so the thing is that this is a disease, just a disease. How it affect the total world, economically, physically, as well as mentally, all the three cases, how it affect, you know about that. Now I will just introduce about this one because we must know about this one. What is the current scenario of this COVID-19? The data is yesterday, up to yesterday, August 8th. Now, how many countries are affected? 230. Just for general knowledge, 230 countries have been affected with this corona. How many cases reported? 203 million. 203,146,538. That means 203 million. That means approximately 20 crore 31 lakh 46,538 cases. That much reported. How much death is there? 4 million. That means 43 crore 3,700. Just look at how much. Sorry, 4 crore. Right? So anyway, the thing is that, sorry, 43 lakh, exactly 43 lakh, 3,700 cases. Sorry, 43 lakh. That is total population. We will count 2.12%. अगर total हम count करेंगे 2.12% चले गए total world population से. This is officially data. Non officially कितना होगा हमें? We don't know exactly, because whatever the come of the official data, it is far lower. ओके, बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट करते नहीं है, बताते नहीं है, गांव में जो होता है वो कुछ बताते नहीं है. ये तो ऑफिशियल डेटा जो हुआ है एग्जैक्टली मिला है. तो सोचिए इतना सारा लोग चले गए इस डिसीज के वजह से. नाउ व्हेन अ कंट्री वाइज यू विल टेक दिस डेटा, जस्ट लुक एट द कंट्री वाइज. यूएसए, which is now the case number case, this is 36 million. India is second number, 31 million plus. Brazil is third one, Russia fourth one, France fifth one. All these things are there. That just 10 country 10. Oh. क्यों हो रहा है, पढ़ेंगे. प्लीज टर्न योर मोबाइल.
something is happening in your life. Anyway, it's okay. I will comment that. If possible to know, you can, otherwise you can understand. Okay. So the thing is that after vaccination as well, why it is happening, we will discuss on that. Because vaccine, what is action of vaccine, we will discuss on that. Please stay patient, we will discuss. Okay. Why vaccine will not work, when vaccine will work, all the things we will look at it. Now, when talking about the country wise, best 5 countries, I have the top 5 country. USA, 36 million, out of 36 million, 6,32,987 people has been gone. But in USA, that is USA. India, 31 million people. How much death? 4,27,892. The red one is your percentage. Just take out the percentage. Brazil, 20 million. How much gone there? 5,60,000. When talking about the mortality, what does it mean by mortality? Death rate. When talking about mortality, which one is larger, highest? Brazil, 2.79%. Out of 100 people affected, 2.79 people death rates are reported. Which one is lesser one? India, 1.33%. Just look at that. So my question is that why it is happening? अमेरिका आप देखेंगे वहां पे 36 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हुए, 1.73 पीपल डेथ, परसेंट ऑफ मोर्टेलिटी इज देयर. इंडिया में 31 मिलियन अफेक्टेड हुए. ब्राजील में 20 मिलियन अफेक्टेड हुए. रशिया में 6 मिलियन अफेक्टेड हुए. फ्रांस में 6 मिलियन अफेक्टेड. Although these are, there may be the population size, but if talking of population size, okay, पॉपुलेशन साइज में डिसीज ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर मोर्टालिटी, राजकोट में पॉपुलेशन साइज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आनंद, सपोज टू बी. यहां पे 100 लोग इन्फेक्टेड होने का बाद, या अमेरिका में 100 लोग इन्फेक्ट होने का बाद 3 लोग मर रहे हैं ब्राजील में. पर इंडिया में 100 लोग इन्फेक्ट होने का बाद 1.3 लोग मर रहे हैं. समझ रहे हैं? नेचर और एनवायरनमेंट होने के लिए चलो नलिफाई कर देते हम कितना पीपल को इन्फेक्ट हुआ है. चलो वहां पे तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो हमको अमेरिका पता था, अमेरिका पॉपुलेशन अराउंड 50 करोड़, इसलिए इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़. ओके, इस वजह से समझ में आता है इंडिया तो ज्यादा इन्फेक्ट होना था, फिर भी इन्फेक्ट नहीं हुआ है. बताइए, अमेरिका का पॉपुलेशन अराउंड 50 करोड़, फिर भी वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन है. सर नेचर वाइज डिफरेंट है. नेचर 4 गुना का आसपास बोल सकते हैं पीपल. तो उसी हिसाब से अगर उनको 36 मिलियन हुआ है तो हमारे यहाँ पे 200 मिलियन होना चाहिए था. 4 गुना का, सर 150 मिलियन तो होना चाहिए था एटलीस्ट. समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो बोलना चाहते हो इंडियन पीपल में कुछ इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, ये बोलना इम्यूनिटी ज्यादा है. ओके, नहीं यहाँ पे तो हर जगह में है ना, अमेरिका में भी सही में होगा, ऐसा नहीं अमेरिका भी सच बोल रहे हैं. समझ रहे? यू आर गॉट द पॉइंट. हाँ हो सकता है. हाँ बात है कि ज्यादा कम हो सकता है. अब सच बोले, वो डेटा सही नहीं बोल रहे, इंडिया वाले भी सही नहीं बोल रहे, वो वाले कहाँ सही बोल रहे होंगे? उसका क्या गारंटी है? बता ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे. इसका मतलब जो डेटा हम उसको बिलीव करना है, उनका डेटा सही है, हमारा डेटा सही है, वही बिलीव करना है. उस डेटा से बात कर रहे हैं हम. ओके, तो उस डेटा में हमको क्या लगा है, तो इन्फेक्शन होने का रेट और मोर्टेलिटी का रेट भी हर जगह में सेम नहीं है. दैट मीन्स नो यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज एंड मोर्टेलिटी. व्हाई? इट डिपेंड्स नेचर ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे हम दोनों बाहर चलेंगे,
बारिश में भीग जाएंगे, मुझे फीवर हो जाएगा, इसको होगा नहीं। या ये दोनों कहीं बाहर घूमने के, पिज्जा खा के आए, तो आराम से डाइजेस्ट कर लिया, इसको पेट दुख सकता है। हमने भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम पूरा हम जो क्लास में जितना लोग है, कुछ को बहुत रफ एंड टफ होते, कुछ नहीं होता उनको, कहीं जाए कुछ भी खाते, कहीं घूमते, कहीं सो जाते, सब कुछ। पर कुछ बच्चे होते हैं, हमने देखा होगा कभी ना कभी फ्रेंड सर्कल में, बाहर बारिश हुआ नहीं, उसका नाक से शुरू हो जाएंगे बारिश, राइट? वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट वन। सो दैट मीन्स डिसीज जो कंडीशन होता है, आई विल डिस्कस व्हाट इज डिसीज। जो आप डिजीज बोलते हो, एक चलता है डिस इजी इक्वल टू डिजीज, वहां से आया इजी मतलब कंफर्ट में, डिस मतलब डिस्कंफर्ट हुआ, वहां से आया डिसीज वर्ड, जो डिजीज वर्ड बोलते हैं ना, वो एग्जैक्ट डिस इजी, ओके, वहीं से आया। कैसे हुआ है? तो मतलब होता है किसी को डिसीज होना नहीं होना उसका इंटरनल एबिलिटी का ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्लियर? जैसे कि इंडियन पीपल का इंटरनल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको इन्फेक्शन कम हुआ है, वो सीधा था टॉपिक में आ गया था, दैट इज इम्यूनिटी जो बोलते हैं हम, ओके। सो इन आवर फ्रेंड सर्किल हम एक्सपीरियंस किए होंगे, सम आर ससेप्टेबल सम का इन्फेक्शन डिसीज, हमेशा डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। हाँ, गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। पर हाउ डज इट रियली मैटर? अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, चलिए मैं बोलता हूँ, हम इंडियन पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे, इंडिया का बात कर रहा हूँ, चलिए हम हमारे यहीं पे स्क्रीन करेंगे ना। हाउ मेनी आर हियर? हम कितने लोग हमें यहीं पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑफ कोर्स 8 इज इन दी ऑनलाइन, 20, हम 20 लोग हैं। चलिए हम टीबी टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करेंगे? टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेरे से 5 लोग नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव आएंगे हम। समझा मैं क्या बोला? मतलब कुछ पैथोजन ऑलरेडी बॉडी में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, हमको क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम डेली टू डे में कितना रेस्पिरेशन करके जाता है, लाखों वायरस जाते हैं, लाखों बैक्टीरिया जाता है, हमको कुछ फर्क नहीं, हमको इसका मतलब कोरोना में इन्फेक्शन बहुत सारा का आपको हुआ होगा, एक्सपीरियंस आप नहीं होंगे। मुझे हुआ था कोरोना, हल्का सा एक दिन फीवर था, मुझे डॉक्टर पैरासिटामोल का 10 गोली दिए थे, मैं 2 गोली खाया था, फिर मैं ऐसे ही पड़ा रहा। ऐसा नहीं, बहुत कुछ होता है। हाँ, डर के हम बाहर नहीं है कि बाकी दूसरा किसको इन्फेक्शन, आपके पास इम्यूनिटी है, सामने वाले को नहीं होगा तो सीवियर हो जाएगा वो, दैट इज द केस। तो हमको पता नहीं ना, ऐसे तो दिखता नहीं है ना, इसको इम्यूनिटी है, इसको इम्यूनिटी नहीं है ना। ऐसे चश्मा हम बनाएंगे, वैसे पहनने का था। अच्छा, ये क्या क्या इम्यूनिटी? टीबी इम्यूनिटी है, कोरोना सारी इम्यूनिटी है, ये हाँ, तो हम इसको प्रेशर उधर मजा इधर, अच्छा होता ना। चलो हम बनाएंगे कभी, ऐसे एक्सपेक्ट पहनने से या स्क्रीन आगे खड़ा कर देने से ये इतने इतने डिसीज को इम्यूनिटी, इतने तो इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा कोई आएगा ना, कोई बात नहीं। सो हमारा फ्रेंड सर्कल हम देखते हैं, कोई हमेशा डॉक्टर के पास जाता है ड्यू टू सब इन्फेक्शन, कोई बिंदा से खेलता घूमता है, उसको कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज दैट, व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन? सभी लोग का अंदर का जो मेटेरियल, जो इनर का जो पोटेंशियल सेम नहीं है, राइट? सो थर्ड वन इज फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज। हम डिसीज का कैसे फाइट करते हैं? एनीवन? हम कोई डिसीज हुआ तो कैसे फाइट करते हैं? ए, जो ऑनलाइन है आंसर करो भाई, वेरी गुड। पूर्णा नेचुरली डिफरेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट इम्यूनिटी, वेरी गुड। तीर्थ, तीर्थ इज हियर, नॉट हियर, ओके गुड। डिसीज को हम फाइट कैसे करते हैं बताइए, आपको पता है? राइट, एक है, चलो इम्यूनिटी को छोड़ते हैं, सेकंड विथ इम्यूनिटी, इम्यूनो रेस्पॉन्स, चलो ओवन इम्यून, वेरी गुड, WBC ओवन, वेरी गुड। नेक्स्ट एंटीबॉडीज, नेक्स्ट
जनरली कुछ हुआ तो हम कहाँ जाते हैं, बी सेल टी सेल, जो कोई आंसर करे। कुछ भी हम कहाँ जाते हैं, हमको कुछ तबीयत खराब हुआ, वेयर आर सपोज टू गो, टू द डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, बड़ा सा इंजेक्शन निकालता है, अगर आप रोएंगे तो बट टेबलेट देता है, राइट। सो केस इज दैट कुछ डिसीज हुआ, कुछ हुआ तो वी आर फाइटिंग विथ, अभी कंफर्ट लगेगा आप लोग को भी, वी आर फाइटिंग विथ external guards. What is that? We are fighting with external guard. What does it mean by external guard? Anything. That means we are fighting with external guard. That means fighting with external, that is mask, just like corona, social distancing, sanitizer, medication, antibiotics, drugs. If we are depending on this, you are requiring, this is forever. अगर आपको बिल्ली से डर लग रहा है या बिल्ली काट लेगा वाला डर लग रहा है, आपको पास में पापा को हमेशा खड़ा रखते हो, तब हमेशा बिल्ली को डरोगी, पापा हमेशा चाहिए आपको नहीं डरने के लिए, मैं राइट। कोई डिसीज आपको बार बार हो रहा है, अगर आप एक्सटर्नल गार्ड का साथ काम करोगे तो आपको हमेशा एक्सटर्नल गार्ड चाहिए होंगे, यस और नो। मेडिसिन आपको हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं आपने एक बार लिया बंद हो गया, नहीं चलेगा। कोई डिसीज आपको हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक खाया, फिर नेक्स्ट टाइम होगा फिर भी एंटीबायोटिक खाओगे, हम खाते हैं ना हमेशा मेडिसिन, हम खाते नहीं रहते, कुछ हुआ तो डॉक्टर से मेडिसिन खाते रहते। एक है फर्स्ट वन विथ एक्सटर्नल गार्ड्स, बाहर का इसमें से। सेकेंड वन विथ इंटरनल एनर्जी, फाइटिंग विथ इंटरनल एनर्जीज या पोटेंशियल। अगर केस इज दैट नथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड, यहीं पे कुछ भी बाहर का नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, नेवर। एक है एक्सटर्नल गार्ड, आपको हमेशा चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। एक है इंटरनल एनर्जी पोटेंसी, वो बाहर का कभी भी कुछ नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट यू कॉल इम्यूनिटी, दैट इज द इम्यूनिटी। फिर से बताइए। समझ नहीं पाए, बोले बोले, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ देखिए, खाने के लिए हम जीते हैं ना, वो तो मना, वो तो चाहिए, एनर्जी के लिए तो खाना चाहिए, वो तो चाहिए। देखिए एक ही चीज, ये सोर्स ऑफ एनर्जी सन, वहां से हमको तो चाहिए, बट एक बार आपने एनर्जी डेवलप कर दिया ना, एक बार आपका बॉडी में एनर्जी डेवलप कर दिया, इसका मतलब नहीं और लाइफ लॉन्ग चलेगा। आज आपने ऑक्सीजन ले लिया, कल ले लोगे थोड़ी चलेगा। स्टिल हम हेल्दी बोलते हैं ना, हम हेल्दी है ऑक्सीजन ले रहे, नहीं मैं हेल्दी ऑक्सीजन नहीं लूंगा तो मर जाएंगे ना। वो तो चाहिए उसको, उसको जिंदा रखने के लिए हर चीज को। और बात है कि मेडिसिन नहीं चाहिए हमें, ओके, बट इट दैट इज इम्यूनिटी। सो फॉर दैट देयर इज इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी। कितना बता क्लास है, 8:30 राइट, 8:30 तक क्लास है ना, फिर ब्रेक है उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके। सो क्योंकि ऐसा मैं लेट हो गया थोड़ा आगे पीछे, एनीवे। सो ये इम्यूनिटी, देयर इज वर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी वी विल लर्न। बट ये इम्यूनिटी क्या करता है बॉडी में, देयर इज इम्यून सिस्टम, ओके। आज मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता था कि आप मेरा एक्सेंट का साथ कंफर्ट हो, क्योंकि आई एम नॉट गुजराती, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। सो कुछ कुछ एसेंट आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो क्लास लगेंगे, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ, ओके। कंफर्ट होगा तो स्पेस में जाओगे, इससे मैं स्पीड नहीं करूंगा क्लास, टेंशन मत लो। पर बात है कि समझो, कोई ऐसे एसेंट समझने तो टाइम लगेगा आपको, एक दो क्लास लगेंगे मेरा जो बोलने का तरीका समझने के। जैसे आप सौराष्ट्र का गुजराती, यहाँ पे डैंग डैंग है ना, उनका गुजराती, दोनों का एकदम अलग है।
मैं दोनों में रहा हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ का थोड़ा अलग टाइप, वहाँ को अलग टाइप में बोलते हैं। रीजन स्पेसिफिक अलग अलग होता है ना, कोई स्लो बोलता है, कोई स्पीड बोलता है, ऐसा होता है ना। सेम एसेंट को अलग अलग बोलते हैं, तो सेम होगा। मैं तो पूरा ईस्ट से हूँ, आप पूरा वेस्ट से। गुजरात वेस्ट है ना, मैं ईस्ट से हूँ, उड़ीसा ईस्ट में। तो मेरा एसेंट आपका एसेंट अलग होंगे, तो एक दो क्लास लगेंगे आपको थोड़ा समझने में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट्स ओके, फिर आप समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात है, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर फॉर कैप्चरिंग द नॉलेज। समझ रहे, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं हो सकता है समझने के लिए। समझने के लिए ओनली विलिंग पावर चाहिए, ओनली एंड ओनली विलिंग पावर चाहिए। और जो नॉलेज हम गेन कर रहे उसका इम्प्लीमेंट की कोशिश करो, नहीं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो जाओगे। आपको कोई, सॉरी, आइजैक न्यूटन जैसे हाइट में जो थे, आपको कोई बिंदा से चिटिंग करके पैसा लेके चला जाएगा आपका। समझ गए? देखो कितना नॉलेज, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इम्प्लीमेंटेशन, आपका नॉलेज को कितना, आपका पास जितना है उसको कितना करते हो, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एनीवे, सो देयर इज ए इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी, we will discuss about that. There are pathogens outside the world. Okay, now the pathogens outside the world, immune system within you. Now immune system is inside your body, pathogen is outside your body. Now the immune system finally gives some kind of energy. That energy is known as immunity. What is that? That is known as immunity. Now this immunity work against the pathogen, okay, to make you safe, okay, from different diseases. Okay, that is the main case. That pathogen, what is pathogen? For now we will discuss, there is a lecture on pathogen. For now pathogen means those are creating disease. These are the living organisms which are creating disease. जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, there are 5 classes of pathogen is there. I will discuss on that. That those organisms which when enter to the human body, yeah, animal's body, they create a disease. That particular organism is in technically term in medical technology laboratory, that is known as pathogen. From pathogen to detection of pathogen is known as pathology. हमने पैथोलॉजी नाम सुना है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी सुना है, पर पैथोलॉजी कहाँ से है? पैथोजन से। वो पैथोलॉजी क्या करते हैं? पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, हाँ इसको ये डिसीज हुआ है, जैसे मलेरिया इसको हुआ है, वो ब्लड लेके देखते हैं, उसका ब्लड में मलेरिया पैरासाइट है, इसको कोविड हुआ है, और उसका लेके आरएनए टेस्ट करते हैं, तो वहाँ इसका है। तो पैथोलॉजी लैब में पैथोजन को डिटेक्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पैथोलॉजी। क्लियर? सो there is a immune system inside your body which give you immunity towards to against the whole world. That means the what I call pathogens are present outside the body. Clear? हमने आज कुछ नहीं ज्यादा पढ़ा है, हमने इतने यहाँ तक कंक्लूड आके पहुंचे हैं। एक आपका पास इम्यून सिस्टम है जो आपको इम्यूनिटी देता है। क्लियर? इस इम्यूनिटी के वजह से you are fighting against various type of diseases. Clear? Done? Okay. So कल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास। आज इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं था, जस्ट मैं और आप फैमिली और बहुत टाइम का बाद आए, है ना। गुड टू सी यू, अच्छा लगा आप लोग को देख के, बट हम मैं भी एनर्जेटिक फील किया। ओके, सो हम कल मैं आपको इंट्रोडक्शन करूंगा, मैं क्या सिलेबस लूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कैसा स्ट्रैटेजी क्या हमारा रहेगा, पूरा आपको इलाबोरेट में कल करूंगा आपको। ओके, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू गाइस हु आर प्रेजेंट ऑनलाइन? पूर्णा, मानसी, कल्याणी, अवनी, ओके, वेरी गुड। सो टुमारो वी विल मीट, व्हिच टाइम? टुमारो फर्स्ट, पूरा दिन लेट, तो ठीक है, वेडनेसडे मिलेंगे। ओके, नहीं मेरा क्लास होगा कोई एक दिन।
हाँ कल या परसों सर, दोनों दिन में कोई तो होगा। वेडनेसडे फर्स्ट है आपका। Okay, Puri madam will start on 8:30. वेडनेसडे, अच्छा, कोई बात नहीं, सीधा थर्सडे सेकंड 8:35। ओके, कोई बात नहीं। कल हमारा लैब है, राइट? कल हम लैब में रेडी होते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कंफर्ट रहना, प्लीज बी कंफर्ट विद क्लास। कोई बात नहीं, कल मेरा क्लास नहीं, मेरा, हाँ, मेरा सीधा क्लास होगा थर्सडे, चलेगा। हम, हाँ, हमारा परसों लेवे। ओके, कोई बात। तो बात है कि हम भी ज्यादा नहीं देख रहे थे, मैं भी आज ज्यादा उस पर, मैं जस्ट देखना चाहता आप कैसे एनर्जेटिक में हो, दैट्स ऑल। तो हम एग्जैक्टली थर्सडे से क्लास शुरू करेंगे। और थर्सडे हम डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस अबाउट सिलेबस क्या है, सिलेबस कंटेंट क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इसको, पढ़ने से क्या होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा, दोनों में डिस्कशन करूंगा आपसे। ओके, सो वी विल मीट इट थर्सडे। मैं आपको अटेंडेंस लिंक थोड़ा देर में भेज रहा हूँ, वहीं पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अटेंडेंस का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दूंगा। आज अटेंडेंस थोड़ा सभी लिबरल है, आराम से कर दो, आज अटेंडेंस कर देना शाम तक। ओके, सो थोड़ा टाइम है मैडम आने के लिए, किसको बाहर जाना जा सकता है, अगर किसको फ्रेश होना है